Hello. What's up? Hope you guys are doing great. Welcome back to my channel. Guys, जैसे ही आप लोगों ने thumbnail से देख लिया होगा, this video is about BBA and the 5 myths that I am going to burst about BBA. स्टूडेंट हूँ बीबीए। मस्त जोक मारा रे। क्या करता है तनिष्क? अभी 12th पास हुई है। ओके, क्या करना है आगे? बीबीए। What are you saying? Guys, देखो, when I had started to pursue my BBA, it was in 2015. 2015 में I joined Christ University for its BBA program. From 2015 to 2024, things have changed tremendously. बहुत ही चीज़ें बदल गई हैं. मतलब जब मैं बैंगलोर जा रहा था to pursue my BBA, that was the first time I heard about Ola, Zomato, Paytm. And like in today's time, Zomato is already listed, Paytm is already listed. So a lot of things have changed in terms of business. Now, why is that important? Is because BBA at the end of the day is Bachelor for Business Administration, which means it is a business course. It is a course towards management. It is a course towards administration. जब मैं BBA के लिए join कर रहा था ना, even though I came from a business family background, I still had to really convince my parents कि पापा मुझे BBA करनी है, प्लीज मुझे करने दो. एंड जैसे सब पेरेंट्स का रहता है, नहीं BCom कर लो, नहीं CA बन जाओ, नहीं अच्छा थोड़ा इंजीनियरिंग की तरफ देख लो. मेरा भी वही था. उसके अलावा even though I thought that for me it was easier, a few of my friends had it really hard. Like they were very sure कि उनको BBA करनी है, उनका इंटरेस्ट टुवर्ड्स बिजनेस है, मैनेजमेंट है, बट उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ ही नहीं किया बिकॉज उस समय BBA की इतनी कोई वैल्यू नहीं थी, इतनी कोई रिकॉग्निशन नहीं थी, इतना कोई जान पहचान नहीं था. एंड व्हेन वी लुक, मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यार उनके कजन्स रिलेटिव्स के बच्चों ने क्या किया है, एंड दे हैड ऑल डन मेजरली इंजीनियरिंग एंड थिंग्स लाइक दैट और MBBS. तो इसलिए इतनी गाइडेंस पेरेंट्स की तरफ से भी नहीं थी, इतने सारे मेंटर्स भी नहीं थे, एजुकेटर्स भी नहीं थे, और BBA यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ वेरी साइड किक कोर्स कि अच्छा जिसको कुछ नहीं करना वो BBA कर लेता है. फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड. पिछले 10 सालों में नॉट ओनली द स्टार्टअप्स बूस्टेड बट वी ऑल्सो सॉ अ पैंडेमिक. And what happened with pandemic was that a lot of people lost their jobs, and because they lost their jobs they had to look out for something else to make money, and that again was entrepreneurship. उसके साथ साथ शार्क टैंक इंडिया लॉन्च हुआ इंडिया में, जिसके कारण हर छोटे से छोटे विलेज में entrepreneurship की बातें होने लगी. People were trying to solve problems, people were trying to make it big. That is the power of mainstream media still in today's time, because where YouTube cannot reach or where Instagram cannot reach, these TV channels can reach, and that is how even startups started doing tremendously well. Plus, because India has had a stable government from 2014 onwards till up until now, the policies have been really good in terms of business. ठीक है, debatable है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सारी चीजें माननी है. I'm not getting into the debate of BJP versus Congress and all of that. But the reality is, it's been a stable government. All of these factors have really pushed businesses in India to grow. And because that has happened, now people are looking for a full-fledged course towards business and management. And that again is BBA. Obviously, I will talk in detail about this more. But let me quickly start with the 5 myths that I am going to be bursting regarding BBA. अभी भी क्या हो रहा है कि पहले तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट अब जब इन्फॉर्मेशन आ गया, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया और पेरेंट्स एंड बच्चे सब कंफ्यूज हो गए कि यार क्या है BBA, मतलब क्या चीजें हैं. कुछ बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ गलत चीज आप लोगों के दिमाग में है, पेरेंट्स के दिमाग में है, जिसके कारण आप लोग एक राइट डिसीजन नहीं मेक कर पा रहे हो कि शुड वी गो फॉर अ BBA और नॉट. सो गाइस, लेट मी क्विकली स्टार्ट बर्स्टिंग दीज मिथ्स. फर्स्ट मिथ इज दैट BBA इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली. ये बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं when they come for my personal guidance and doubting session कि hey कवच, even if we want to do BBA right now and later on we want to send our son or daughter abroad, whether it's to Canada, Australia, UK, US, their BBA is not recognized. And I am just like, uncle, no, auntie, no, that's wrong. देखो, I know where you are coming from. बहुत बार पेरेंट्स एंड बच्चे रिसर्च करते हैं कि यार टॉप कॉलेजेस के अंडरग्रेड कोर्सेज में क्या BBA ऑफर होती है और नहीं होती है. The thing is guys, in abroad the education system is very different from that in India. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत एक मेजर माइनर का सिस्टम है which is obviously also coming in India, but it is not full-fledged there. So there the courses are very different. But the reality is BBA is very well recognized in all the universities abroad. Even for their undergrad courses abroad, whether you pick out top universities from UK or Canada or from Australia or from US, they all have business programs. बस फर्क यही है कि वो अपने प्रोग्राम्स को बिजनेस प्रोग्राम्स बोलते हैं और हम इसको BBA बुलाते हैं. So if we are trying to look out for a same replica, we might not get the same name, but the courses are very similar. अब हार्वर्ड आप सबको पता है. Let me give you an example of Harvard. Harvard obviously does not offer a BBA program at the undergrad level, but they offer a business management program, a behavioral economics program, a business management and economics program. So इस टाइप के कोर्सेज वहाँ के अंडरग्रेड कॉलेजेस में ऑफर होते हैं. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
For anybody who wants to go for their masters abroad, whether it's in Australia, Canada, UK, US, you can definitely do your BBA and your BBA will be very well recognized. अपनी personal story बता देता हूँ. After I had done my BBA, I was working at EY. After that, I had applied to colleges abroad. I mean, you can go check out my channel. I've put out in detail मेरी story क्या थी. But the thing was, I had made it to top colleges abroad, whether it was Imperial Business School or ESSEC Business School, and I have a BBA background only, right? So अगर BBA recognized नहीं होती, then they wouldn't have given me admission. At the same time, so many of my friends today are in the top of the colleges of the world, whether they're in Stanford or, you know, Chicago Booth and all of the colleges, and they also come from a BBA background. So, to cut this debate short, for all you people who want to go abroad, आप BBA कर सकते हो, कोई problem नहीं है. BBA is very well recognized. If in case कोई बच्चा नीचे से example में बोलता है कि भैया मैंने तो BBA की थी but मैं reject हो गया, तो boss you got rejected not because of your BBA but because of your whole curriculum and profile. तो आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी इसलिए उन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया होगा. बट ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ऑफ बीबीए बैकग्राउंड से आता हो वो आपको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे. आई होप दैट इज क्लियर. सेकंड मिथ जो सबके दिमाग में है कि बीबीए प्रोग्राम्स आर सेम अक्रॉस. ऑल द बीबीए प्रोग्राम्स आर सेम. बहुत बार पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कम टू मी के कवच हम अपने बच्चे को इतनी दूर क्यों भेजें, हम बॉम्बे क्यों भेजें, हम पुणे क्यों भेजें, हम बैंगलोर क्यों भेजें, जबकि भोपाल में भी एक अच्छा बीबीए कॉलेज है, अमृतसर में भी एक अच्छा बीबीए कॉलेज है, जम्मू में भी एक अच्छा बीबीए कॉलेज है, तो वहां से क्यों नहीं करवा लेते. बीबीए तो सेम ही है. बट दैट इज वेयर इट्स अ मिथ गाइस. इट इज नॉट द सेम. Reality is BBA is not a very hard course. It's not a course like say engineering or MBBS जहाँ पे बहुत hardcore पढ़ाई है and the curriculum is the same. It is not like CBSE and ISC. BBA is a lot about experience. आप किन बंदों से interact करते हो, आप क्या उनके साथ बातें करते हो, आपके projects कैसे हैं, आपके assignments कैसे हैं. They make a huge difference in your learning of the 3 years, 4 years that you're spending with the university. अब होता क्या है, if you join a local college or an average college or a shitty college or a tier 3 college, उस college में even though curriculum same होगा, your experience will not be the same. You will not be intermingling with a very smart crowd. You will not be interning at the top of the places. You will not be getting really good exposure. And that is where your whole experience of BBA will falter. इसी के कारण है कि बहुत सारे BBA के बच्चों को इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही है. इसी के कारण है कि बहुत सारे बीबीए के बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही है. दैट इज व्हाई सो मेनी पीपल फ्रॉम बीबीए आर डायरेक्टली जंपिंग टुवर्ड्स एमबीए, क्योंकि उनको लगता है भैया बीबीए के बाद तो कोई जॉब ही नहीं मिल रही है, हमें एमबीए करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके हमारी कोई वैल्यू निकलेगी. सो गाइस सिंपली आई एम टेलिंग यू द रीजन व्हाई देयर आर सम कॉलेजेस दैट कम इन द टॉप 5 like say NMIMS, Christ, Symbiosis, St. Xavier, Shahid Sukhdev is because their curriculum is really very good. Along with that, they are fetching the smartest brains of the country in their colleges. अब होता क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ हार्वर्ड, राइट? लाइक यू गेट द स्मार्ट ब्रेन्स अंडर वन रूफ, दे विल फिगर आउट व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ. एंड दैट इज द सेम केस विद दीज टॉप कॉलेजेस एज वेल, वेदर इट्स सेंट जेवियर्स, क्राइस्ट, सुखदेव, कि इन कॉलेजेस में बहुत स्मार्ट बच्चे जा रहे हैं. And once these smart people are going there, they are automatically trying to do well. They are automatically very hustle oriented in their mind. उनको अच्छा ही करना है, तो वो टॉप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, टॉप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, टॉप स्टार्टअप्स अपने आप को प्लेस करवाने की कोशिश कर रहे हैं या खुद के लॉन्च कर रहे हैं. ये सारी चीजें आपको एक सिटी कॉलेज और टियर 2, टियर 3 कॉलेज में नहीं मिलेंगी. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डोंट थिंक सो दैट ऑल द बीबीए प्रोग्राम्स आर द सेम. मेरा हमेशा से यही कहना है, हर कोई बच्चा जो मेरे से पर्सनली भी आके मिलता है, मैं सबको यही कहता हूँ, इफ यू वांट टू डू बीबीए, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू इट फ्रॉम अ रियली गुड कॉलेज. Otherwise, don't do it. Because BBA is a general course, it is not a professional course. MBBS करने के बाद आप डॉक्टर बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, बट BBA करने के बाद आपके नाम के आगे कोई टैग नहीं होता है. So I hope you're getting what I'm trying to say. Third major myth is that MBA is the only option after BBA. इसके साथ साथ इसी के सेम है कि बीबीए के बाद the only option that you have is to do an MBA, which again is not correct. Let me burst the myth here itself. Guys, after BBA you are free to do whatever you want to do. आपका जो करने का मन है आप कर सकते हो. There is no foundation. Funnily enough, आप मानोगे नहीं, मेरे बैच की कुछ बच्चे हैं, they are in hardcore tech roles. आप बोलोगे how come they are in hardcore tech roles? It's because they worked hard, they did some courses after their BBA, and today they are doing robotic process and automation, artificial intelligence, machine learning, LLMs वगैरह. उसके साथ साथ आफ्टर बीबीए यू आर फ्री टू डू कोर्सेज इन फैशन, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, लॉ, जर्नलिज्म. जो आपका करने का मन है आप कर सकते हो. MBA is not the only option. However, yes, a lot of people who do BBA वो इसलिए करते हैं because उनका मन बिजनेस की तरफ होता है. तो जब BBA उनका बेस बना देता है, they want to explore more or get a good brand name or get a good, get into a good company, तो उनको लगता है MBA is a really good option, which I am not denying. MBA definitely is a really good option. बट इट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन. सो अगर किसी का बीबीए करने के बाद मन चेंज हो जाता है, वो कहते हैं यार हमें बिजनेस नहीं करना, बट हमें साइकोलॉजी पढ़नी है, या हमें लॉ करना है, या हमें जर्नलिज्म करना है, या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करना है, यू गाइस आर फ्री टू डू इट.
So जरूरी नहीं है कि BBA के बाद सिर्फ MBA ही कर सकते हो. You have thousands of options of what you want to do. BBA is a general course towards business and management, but after that, if you want to specialize in like say hotel management or event management and things like that, आप उसके कोई specific courses कर सकते हो और automatically build your career in the same. I hope this is clear. Fourth myth, and ये भी बहुत सुनने को मिलता है मुझे कि भैया BBA and BCom are just the same. कि यार कुछ भी कर ले, बात तो सेम ही है ना, BBA कर लो या BCom कर लो. बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं हमारे चाचा का बेटे ने या अंकल के भुआ के मासी के बेटे ने या किसी ने BCom की थी तो हम अपने बेटे को भी BCom ही करवाएंगे, अपनी बेटी को भी BCom ही करवाएंगे, बिकॉज सेम ही है. आप BBA की बात क्यों डाल रहे हो? दैट इज नॉट करेक्ट गाइज. अगेन दिस इज अ मिथ जो कि बहुत चल रहा है मार्केट में कि BBA BCom सेम है, कुछ भी कर सकते हो. नहीं, डेफिनेटली 20-30 ईयर्स पहले क्या होता था, कॉमर्स वाले बच्चों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती थी, वो थी BCom. तो BCom करते थे. साइंस वाले बच्चे इंजीनियरिंग करते थे या नीट कर रहे होते थे, वो सारी चीज़ें. बट BBA ऑप्शन ही नहीं. बट आफ्टर दैट दे रियलाइज कि यार BCom इज अ लॉट मोर टुवर्ड्स अकाउंटेंसी, इट्स अ लॉट मोर टुवर्ड्स फाइनेंस, इट इज अ लॉट मोर टुवर्ड्स नंबर. बट एट द सेम टाइम एज स्टार्टअप्स हैव इवॉल्व्ड, वी रियलाइज कि बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस हैं जो हमें समझने हैं, whether it's administration and management or marketing or human resources or entrepreneurship or strategy or creative thinking or communications, leadership. इतनी सारी चीजें हैं जो कि एक BCom प्रोग्राम सफाइज नहीं करता है. अब आई नो कुछ बच्चे BCom के होंगे जो बोलेंगे बट हम भी तो कुछ ऐसी चीजें पढ़ ही रहे हैं अपने कोर्स में. आप पढ़ रहे हो, नो डाउट अबाउट इट, बट BCom courses are lot more driven towards finance, lot more driven towards accountancy. So for anybody who wants to do chartered accountancy, anybody who wants to do CS, anybody who wants to do ACCA, CPA, CFA, investment banking, कुछ भी इस तरफ का करने का मन है, I would suggest you to go for a BCom program because that is a lot more driven towards accountancy and finance. Whereas if you don't want to do these things and still look out for an aspect of business and management, BBA is a better course choice for you because you will be learning about marketing, human resources, finance, जो कि एक BCom प्रोग्राम इतनी डिटेल में आपको नहीं पता पाएगा. So long story short, BBA and BCom are not the same. If you need more clarity, you can definitely see me for a personal guidance and doubting session or check out my previous videos of BBA versus BCom. इसमें मैंने बहुत डिटेल में सारा एनालिसिस किया है और BBA versus BCom. Fifth and the last myth, and there is a reason मैंने इसको एकदम लास्ट में रखा है, is that BBA is not worth the money spent. अब गाइज मैं पहले ही बता देता हूं कि दिस इज नॉट कंप्लीटली अ मिथ, दिस इज समवॉट ट्रू एज वेल. आज के टाइम पे ना देखो क्या हो रहा है कि यू गाइज नो कॉलेजेस मेक मनी, दे आर देयर टू मेक मनी एंड दैट इज डेफिनेटली फाइन. बट द थिंग इज दैट दे आर टेकिंग BBA फॉर ग्रांटेड. उनको लग रहा है कि भाई BBA में आते हैं बिजनेस बैकग्राउंड के बच्चे जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत रिच हैं, तो उनसे हम ज़्यादा फीस ले सकते हैं एंड वो कुछ भी कर लें, उन्होंने तो अपने बाद में जाके अपने डैड के बिजनेस में ही जाना है या कुछ भी अपना कर ही लेंगे, वो तो रिच ही हैं, तो इनको कोई इतना प्लेसमेंट्स वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है. आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं उन कॉलेजेस के नाम नहीं लूँगा, बट आप लोग जाके रिसर्च कर सकते हैं एंड कुछ लोग कॉमेंट में भी बता देना कि वो कॉलेजेस कौन से हैं. बट दीज कॉलेजेस हैव हाइड देयर फीस टू अनदर फकिंग लेवल. मतलब कुछ भी फीस रख रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको लग रहा है BBA है, बिजनेस बैकग्राउंड के बच्चे आएंगे तो वो दे कैन अफोर्ड इट. 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए फीस कर दिए BBA कोर्स की. Plus, when you look out for the placement stats, it is just like any other college, 3.5 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, 5.5 lakhs. So for these colleges, this statement is not a myth. It is actually true that BBA is not worth the money spent. That is why I would highly tell you कि जिस भी BBA कॉलेज में जा रहे हो, प्लीज एक बार ये रिसर्च कर लेना कि ये ना हो कि उनका आर्बिट्राज ऑफ द फीस दैट दे आर चार्जिंग एंड द प्लेसमेंट जो निकल के आ रही है वो बहुत ही खराब हो. आई नो बहुत बच्चे इसको भी जस्टिफाई कर देते हैं. मेरे पास आके कई बच्चों ने ना अपना मन बनाया होता है कि यार हमने तो इसी कॉलेज में जाना है, जो मर्जी भी फीस है. मैं उनको कितना मना करता हूँ कि यार इट्स नॉट वर्थ इट, ये बहुत महंगा कॉलेज है, आप कुछ और देख लो. तो बोलते नहीं भैया हमने तो इधर ही जाना है. तो मैं बोलता हूँ प्लेसमेंट इनके बहुत खराब है. वो कहते हैं हाँ भैया बट तो क्या हुआ, हमने कौन सा प्लेसमेंट करनी है, हमने तो यार हायर एजुकेशन के लिए जाना है, हमने तो फैमिली बिजनेस करना है. गाइस इवन इफ आपने फैमिली बिजनेस करना है या हायर एजुकेशन के लिए जाना है, गुड कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस शोकेस अ लॉट अबाउट द कैंपस एंड द करिकुलम एंड द प्रोग्राम. तो अगर आपको प्लेसमेंट नहीं भी चाहिए बट अगर अच्छी कंपनीज कैंपस में आ रही हैं, अच्छे पैकेजेस दे रही हैं, तो आपकी ओवरऑल बैच की ग्रोथ हो रही है. आपको नहीं चाहिए इट्स फाइन, बट आपके क्लासमेट को चाहिए हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड को चाहिए हो सकती है, आपके किसी और फ्रेंड को चाहिए हो सकती है. और अगर उनको मिल रही है तो अच्छा है ना, वो लोग भी तो ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में. आप तो चले जाओगे अपने फैमिली बिजनेस में या हायर एजुकेशन में, बट क्या पता उनके पास ऐसे ऑप्शंस ना हो. सो फॉर देम टू गेट गुड प्लेसमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इस जगह पे मेरे को लगता है बहुत सारे कॉलेजेस आज के टाइम पे BBA सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम 60 स्टूडेंट्स का 120 स्टूडेंट्स का बैच खोल देंगे, बच्चे तो घूम फिर के आ ही जाएंगे, हम फीस एकदम टॉप की रखेंगे तो एकदम रिच के बच्चे आएंगे एंड वो लोग अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, हम भी अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे और पैसा ही पैसा कमाएंगे, पैसा ही पैसा होगा. बट आई डोंट वांट दैट टू हैपन. सो इवन इफ यू कम फ्रॉम द रिचेस्ट बैकग्राउंड, इवन इफ यू वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन, इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर प्लेसमेंट्स, आई वांट यू टू लुक आउट फॉर कॉलेजेस वेयर द फीस इज डिसेंट एंड द प्लेसमेंट्स आर रियली वेरी गुड. नाउ कमिंग टू व्हाई आई स्टिल कंसीडर दिस स्टेटमेंट टू बी अ मिथ दैट BBA is not worth the money spent is a myth, because
I have genuinely seen people do really well out of BBA. And BBA alone itself. मैं अपना example नहीं ले रहा, but I can give you examples of so many of my batchmates who are doing really well. ठीक है, जिन्होंने businesses चालू किए हैं, they are definitely hustling, they are doing well. Those who have joined their family businesses are growing those family businesses. But जिन्होंने खुद से भी चीज़ें की हैं, जो खुद corporate में भी गए हैं after BBA doing a job and now growing. You know, we finished our course 6 years back now. तो अब तक पता चल रहा था यार कौन कितने हवा में है, कौन कितने पानी में, और लोगों ने बहुत अच्छा किया है. So I don't think so. BBA is not worth the money spent. It is worth the money spent provided you work hard, you pull your strings in the best manner and you get into the right position at the right time. Simple as that. तो कईयों के लिए BBA पूरा worth it होगा because after BBA or maybe in BBA only they launch a startup and that startup does really well. They've raised funding, they are doing well. You know, they've got a product market fit. सब कुछ वो सब हो रहा है तो बढ़िया है. But obviously कई लोगों के लिए who do it from very shitty colleges जिसकी फीस बहुत हाई थी, कोई प्लेसमेंट नहीं मिली, खुद से उन्होंने कुछ चालू नहीं किया, फैमिली का बिजनेस है नहीं, हायर एजुकेशन के लिए वो गए नहीं. And in that scenario, BBA is completely not worth the money spent. So ये जो last statement है, I don't consider this to be a completely a myth, but it is what it is. Which means that अगर आप लोग BBA प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी in order for you to do well. So yes guys, that's about it for this particular video. Thank you so much for watching this video till the very end. Sorry यार ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, but I wanted to clarify all the top 5 myths that I see on the internet or I see parents or students asking me or putting up in the comments of my videos. I hope आपको ये सारी information अच्छी लगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार एक thumbs up कर देना. Please comment below if you have any doubts, question, queries. अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब to my YouTube channel, press the bell icon.